Hello everyone, class 9th students. How are you all? I hope all of you are in good situation, right situation. Dear students, as you know that we are learning chapter 1. The name of the chapter is the fundamental unit of life, that is cell. So dear student, under these chapters today we will discuss some important contents related to the cell. So here is an important part of the cells, because cell is made up of mainly three parts, that is cell plasma membrane, ठीक है, which is known as the selectively permeable membrane, nucleus and protoplasm, which is contained inside the cell, ठीक है. So dear students, today we will discuss about the important parts, that is nucleus. Nucleus, you know that it is known as the brain of the cell, because it has its own importance in the cells, because it directs the cells what to do. It gives the directions, provides the directions the cells to what to do, what are the main function which we have to perform. So dear students, nature and occurrence where nucleus will be found. The nucleus is a large centrally located spherical cellular components, ठीक है. It is bounded by two nuclear membrane. It is important here because nucleus is bounded by two nuclear membranes, ठीक है, inside or outside. You can see here the figures, if we throw light here, that is there are the two, one inside and other is the outer sides. There are two types of the nuclear membranes. So you can see here that it is a double, ठीक है, that is the bounded by two nuclear membranes, both forming a nuclear envelope, ठीक है. तो nuclear envelope encloses a space between two nuclear membranes and is connected to the system's membranes called the ER, जिसे कहते हैं endoplasmic reticulums. We will discuss in next endoplasmic reticulums, जो आपका क्या होता है. तो here we have to discuss about the nucleus. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन है कोटेड. यहाँ पे आप देखो ना, पहला है न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर इन्वेलोप और न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म आल्सो, ठीक है. तो साइटोप्लाज्म भी है यहाँ पे आपका और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है. तो साइटोप्लाज्म दिस इज नोन एज द साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब जेली लाइक मटेरियल्स. पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की. तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ structures present in the nucleus of the eukaryotic cells. It is mainly involved in assembling the ribosomes, modifications or transfers RNA and sensing cellular stress. Dear students, as you know that nucleolus, the function of the nucleolus क्या होगा, क्या function करता है nucleolus? The nucleolus considered as the brain of the nucleus. ये न्यूक्लियोलस जो आपका है, इट इज़ कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. इट ऑक्युपाइज अराउंड 25% वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. ये पूरे न्यूक्लियस का 25% वॉल्यूम ये कवर करता है, ठीक है. इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शंस ऑफ सब यूनिट्स विच देंस टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम्स. Therefore, nucleus plays an important role in protein synthesis and productions of ribosomes in eukaryotic cells. So, nucleolus is considered as the factory of the ribosomes, because ribosomes prepares here. So, ribosomes are prepared by the nucleolus. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है न्यूक्लियोलस में और राइबोसोम्स फॉर्म करते हैं, ठीक है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम्स क्या होता है, व्हाट आर द राइबोसोम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ द न्यूक्लियर इन्वेलोप्स. क्या करता है न्यूक्लियर इन्वेलोप्स? हियर इज़ अ न्यूक्लियर इन्वेलोप, हियर इज़ अ न्यूक्लियर इन्वेलोप, ठीक है. तो न्यूक्लियर इन्वेलोप सेपरेट्स द न्यूक्लियर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियर इन्वेलोप्स कंटेन्स मेनी पोर्स मतलब होल्स, ठीक है, एंड इनक्लोजेस द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंसेस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म अलाउज करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है. विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स आर इम्बेडेड. तो न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल्स, ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल्स. तो न्यूक्लियोलस में भी
may be one or more in the number and is not bounded by any membrane. It is rich in protein and RNA. RNA और DNA जो होते हैं, RNA और DNA, RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ये क्या है, मालिक्यूल्स एक्ट एज द साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशंस. राइबोसोम्स फॉर्मेशन साइट यही है आपका न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा. तो न्यूक्लियोलस इज नोन एज द, इसीलिए न्यूक्लियोलस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म. और राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस आर फॉर्म्ड. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी डन बाय द ribosomes. Ribosomes helps in the protein synthesis in the cytoplasm. So dear students, you can see the structures of the nucleus here. That is the structures of the nucleus. Here is the pores. Pores मतलब hole which allows the enter and exit the materials. ठीक है. Endoplasmic reticulums, you can see endoplasmic reticulums here is a, and you can see that point at which nuclear membrane is connected in the endoplasmic reticulum. यहाँ पे आप स्पेस कैविटी भी दे सकते हैं. यू कैन सी द स्पेस कैविटी इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज हियर, दैट इज नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. इफ यू सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वी कैन फाइंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. क्रोमोसोम्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. ठीक है, which presents in the nucleus में present है. that becomes visible only during the divisions जब होता है तब आपका देखते हो ना. मिटोसिस एंड मियोसिस में डिवीजन होता है. मिटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं? मिटोसिस में डिवीजन, जब डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, पहले जब सेल का डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है. जिसे यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखे हो कि यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन होता है, उसे मिटोसिस कहते हैं. ठीक है, और जिसमें नहीं प्रोकैरियोटिक होते हैं तो उसमें आपका मियोसिस होता है. क्रोमोसोम्स कंटेन्स, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स में क्या हेरिडिटिक कैरेक्टर्स है. हेरिडिटिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे सेल्स में कोई क्वालिटी है, वंशानुक्रम, कोई सिम्टम्स हैं, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर सेल्स. तो जब एक सेल दूसरे सेल में एक्सप्लिट होती है या फिजन होता है सेल का, तो उसका हेरिडिटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो हेरिडिटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स के फॉर्म में होते हैं. ये हेरिडिटिक यूनिट होते हैं. ठीक है, ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ द 2 कंपोनेंट्स. ईच क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 कंपोनेंट्स के होते हैं. एक डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और दूसरा प्रोटीन्स, हिस्टोन एंड एसिडिक प्रोटीन्स. तो डीएनए जो आता है, डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है. इट इज़ द मटेरियल ऑफ द जीन्स. ये जीन्स का मटेरियल है. मोस्ट क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स. यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हियर. यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. दिस इज द क्रोमोसोम्स. ठीक है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. यहाँ पे अनरिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स. डुप्लीकेटेड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुआ है, एक कॉपी उसने उसी कर लिया है. ठीक है, जिसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, डुप्लीकेट. तो इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स ईच इन अनरिप्लिकेटेड स्टेट. यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है, डिपेंडेंट नहीं हैं. लेकिन यहाँ पे जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स यानी एक फोटोकॉपी हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी द फिगर स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स. तो क्रोमैटिड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बिफोर अ सेल डिवाइड्स इन डुप्लीकेट्स. डुप्लीकेट का मतलब है कि जब सेल डिवाइड होता है, एक दूसरे के फॉर्म में स्प्लिट होता है, तो इसके क्रोमोसोम्स भी कॉपी हो जाते हैं. तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स मेक्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ. ये देखो, उसमें एक कॉपी अपना कर लेते हैं. एंड बिकम एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स. प्रोटीन से एसोसिएटेड हो जाते हैं. तो जो 2 कॉपी इनकी बनती है रिमेन्स अटैच टू द सेंट्रोसोम्स. सेंट्रोसोम से अटैच होते हैं. एज लॉन्ग ऑफ द 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द कॉमन सेंट्रोसोम्स, दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. ठीक है, तो बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल विद द आइडेंटिकल जीन. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द 2 सिस्टर्स क्रोमैटिड्स सेपरेट्स एंड ईच क्रोमैटिड्स बिकम एन इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स.
और फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 सेल्स में डिवीजन के बाद ये इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज द डिवीजन ऑफ द cell and in which the chromosomes can transfer the genetic characters from one cells to another cells if the cells gets splitted. So dear students, here is important to know, जैसे आपने देखा है कि कभी कभी होता है कि कुछ पेरेंट्स के हेरिडिटिक कैरेक्टर्स आप में आ जाते हैं। हेरिडिटिक मतलब है वंशानुक्रम वो। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू नो क्रोमोसोम्स सेंट्रोसोम्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इट इज़ सो लेट अस डिस्कस डियर स्टूडेंट्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या होगा, उसके कार्य क्या होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कार्य करती है। तो न्यूक्लियस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले ही बताया गया है कि इट हैज़ बीन टोल्ड यू कि न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज़ रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स, यानी किसी भी सेल्स की जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक का मतलब है डाइजेस्टिव एंड सिस्टम्स, उपापचय की क्रिया है, जितनी भी आपकी गतिविधियाँ हैं इंडाइजेशन से लेकर के डाइजेशन तक की क्रिया के जो हमारे इंजेशन और डाइजेशन की जो क्रिया है, दैट इज़ द मेटाबॉलिक, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स को कंट्रोल करता है। ये काम कौन करता है, न्यूक्लियस करती है, ठीक है। तो द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल, न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स। तो द प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राइज अप एंड डाइज। अगर हम न्यूक्लियस को निकाल दें तो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है विच इज़ द बेस ऑफ द सेल्स, लाइफ ऑफ द सेल्स, वो डाइज हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो है जेली लाइक सब्सटेंस, वो ड्राइज अप हो जाएगा और इससे हमारा सेल डैमेज हो जाएगा। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल्स, और ये सेल साइकिल को रेगुलेट्स करता है। तो इट इज़ ये काम कौन हु परफॉर्म दिस एक्टिविटीज, दैट इज न्यूक्लियस। तो इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटिक ट्रेट्स फ्रॉम द parents to offsprings. Okay, as you have learned that there is a nucleolus in which the chromosomes are formed, because chromosomes can be formed at the platforms of nucleolus, ठीक है। nucleolus is regarded as the factory of the chromosomes. तो chromosomes क्या होते हैं, हेरिडिटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन से पेरेंट्स टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स तक का ट्रांसफ़र कौन करते हैं, क्रोमोसोम्स हेरिडिटिक कैरेक्टर को। और वो कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोडक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। यू हैव लर्नड इट। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टर्म्स सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। यू हैव टू डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स में डिस्कस करें, आज हम लोग डिस्कस करें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं भाई, एनी ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ लिविंग सेल इज कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स। एनी ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन अ लिविंग सेल इज नोन एज द सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल, you know that the cell has to perform different function with the help of various membranes bound organelles. बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स बाउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है न्यूक्लियोलस जो होता है वो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ओके स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू लर्न इट। तो ऑल सेल हैज़ टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेल ऑफ इट्स वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो पहला काम क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स का, इट हैज़ टू सिंथेसाइज द सब्सटेंस, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम अभी कौन कर रहा था, आपने देखा है कि राइबोसोम्स करता है। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोटीन का यूजेज हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और प्रोटीन में आज यू नो दैट प्रोटीन सिंथेसिस होने का मतलब है प्रोटीन हमारी किससे बनी होती हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। तो इसीलिए डीऑक्सी, आपने देखा है ना कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स जैसे आरएनए, एसिड आपका वर्ड आया ना, तो अमीनो एसिड से बने। कितने अमीनो एसिड्स हैं अभी तक, 23 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स, लिपिड सिंथेसिस ऑन द सरफेस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, SER जिसे कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड्स, ग्लूकोज स्टार्च बाय क्लोरोप्लास्ट। इट हैज़ टू सीक्रेट द प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मकस एक्सेट्रा।
तो ये कौन एक्सिट करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। इट हैज़ टू डाइजेस्ट दो सब्सटेंस विच आर टेकन बाय द सेल ड्यूरिंग द इंडोसाइटोसिस। सच इंटरसेलुलर digestion is done by enzymes of liposomes. It has to digest those substances which are taken up. जो हम लोग चीज़ खाते हैं उस सबको डाइजेशन करने का काम कौन करता है, इसे इंडोसाइटोसिस का मतलब है हम अपने बॉडी के अंदर फूड मटेरियल्स लेते हैं। सच इंटरसेलुलर डाइजेशन इज डन बाय एंजाइम्स और लाइसोसोम्स। एंजाइम और लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एंजाइम्स हमारे कुछ डाइजेस्टिबल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग इम्पोर्टेंस। चौथा फंक्शन क्या हो सकता है सेल ऑर्गेनल्स का, इट हैज़ टू जनरेट एनर्जी। जैसे आप लोग को पता है कि एनर्जी रिलीज होती है, जब हम लोग फूड खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी एटीपी पे रिलीज होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बाई माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेम्ब्रेन इज़ ए रिमार्केबल सेलुलर स्ट्रक्चर। जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। एवरी सेल इज़ बाउंड बाई ए मेम्ब्रेन, और जितने भी सेल हैं वो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड हैं, and thus keeps its own content separate from the external environments. The larger of more involved cells from multicellular organisms have a great deal of metabolic activities. Okay students, now let us discuss about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum structures जिसे कहते हैं ER. ठीक है, so you can see the pictures of endoplasmic reticulum structures. Here is the endoplasmic reticular structures. You can see here students. These are the structures of endoplasmic reticulums. इसमें रफ endoplasmic reticulums और स्मूथ endoplasmic reticulum SER और RER। राइबोसोम्स भी यहाँ पे, न्यूक्लियर इन्वोलप भी हैं, न्यूक्लियस भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अकरेंस कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का, ये ER का अकरेंस कहाँ है, कहाँ पे पाई जाएगी। इनसाइड द सेल्स देयर एग्जिस्ट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क्स including a fluid-filled lumen, ठीक है, which almost fills up the intercellular cavity. It is called endoplasmic reticulums. यहाँ fluid like lumen structures है, you can see here. It is called endoplasmic reticulum. At one end, ER is connected to the outer membrane of nucleus. At the other end of the plasma membrane. एक तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, एक तरफ से ये एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरफ ये कनेक्टेड होती है टू द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अदर एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तरफ न्यूक्लियस से घिरी होती है, एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ER अकर्स इन 3 फॉर्म्स, सिस्टर्ने, क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक्स, ठीक है, वेसिकल्स एंड ट्यूबल्स। इट इज़ ऑफ द 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स राइबोसोम्स अटैच होते हैं ऑन इट्स सरफेस फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होता है विच इज़ विदाउट राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं, एंड इट इज़ मीन्ड फॉर द सेक्रेटिंग लिपिड्स। यहाँ पे लिपिड्स का सेक्रेशन होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर्स, यू कैन सी हियर 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है वेसिकल्स, ठीक है, ट्यूबल्स एंड सिस्टर्न। फंक्शन क्या है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का फंक्शन यू हैव टू लर्न इट, इनके कार्य क्या हैं। इट फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेम ऑफ द सेल्स। इस सेल का स्केलेटल फ्रेम वर्क करता है, इस सेल का एक स्केलेटल नेटवर्क ड्रा करता है। ER provides pathway for distribution of nuclear material from one cells to another cells. ये प्रोवाइड्स करता है पाथवे, एक गेटवे प्रोवाइड्स करता है, प्लेटफॉर्म्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशंस का। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर। सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्मूथ ER सिंथेसाइज फैट्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्मूथ, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में कुछ सर्टेन एंजाइम्स हैं जो सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स, फैट्स, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स का ट्रांसमिशन करते हैं विद सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, क्योंकि जो राइबोसोम्स सिंथेसाइज करता है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है ऑन देयर सरफेस। सम स्पेशल फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का फंक्शन और भी देख सकते हो आप इसमें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऑफ लीवर ऑफ
vertebrates helps in the detoxifications. Okay, to metabolize various toxic poisonous substances such as drugs, springs, insecticide, DDT, petroleum products and pollutants. These toxic substance makes their entry in the animal's body through the foods, air and waters. तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशंस. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब अगर हम लोग कुछ खा लेते हैं तो जो टॉक्सिक टाइप का है दैट इज़ नॉट फिट फॉर आवर हेल्थ, इट इज़ अ हेल्प्स इन उसको डिटॉक्सीफाइड कर देता है तुरंत. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ER प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस. ठीक है, बायोसिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. You can see here the many functions of endoplasmic reticulums. We have seen the nucleus and endoplasmic reticulums organelles, and I hope all of you are learning it very well. Thank you, students. In next video we will discuss the remaining cell organelles in next video.